Charles Lamb comments that wives do not bear any old friend of their husbands. Without their consent, no friendship can exist. Lamb writes, I have scarce a married friend of my acquaintance upon whose firm faith I can rely, whose friendship did not commence after the period of his marriage. With some limitation, they can endure that. They here refers to friends, wives. But that the good man should have dared to enter into a solemn league of friendship in which they were not consulted, though it happened before they knew him, before they that are now man and wife ever met. This is intolerable to them. Here Lamb writes that women cannot tolerate और कैन नॉट बियर एनी ओल्ड फ्रेंड ऑफ देयर हस्बैंड्स, कि अगर उनके हस्बैंड के साथ उनके फ्रेंड की जो फ्रेंडशिप है वो उनसे कंसल्ट करके या उनकी सहमति से नहीं बनाई गई है और वो उनके रिलेशन डेवलप होने से पहले की फ्रेंडशिप है, देन दिस इज़ इनटॉलरेबल टू दीज वुमेन. एवरी लॉन्ग फ्रेंडशिप, एवरी ओल्ड ऑथेंटिक इंटीमेसी must be brought into their office to be new stamped with their currency. As a sovereign prince calls in the good old money that was coined in some reign before he was born or thought of, to be new, marked and minted with the stamp of his authority, before he will let it pass current in the world. Here Lamb uses a beautiful simile to explain his point. He says that as a sovereign prince calls in the good old money, जैसे कि एक प्रिंस जब राजा बनता है तो वो अपने सारे पुराने पैसे को, मनी को मंगाता है. That was coined in some reign before he was born, जो कि बहुत उसके जन्म से पहले या उसके राज्य में आने से पहले जो कॉइन किया गया था पैसा. And he bring that money to be new marked और minted with the stamp of his authority, ताकि वो उस पर अपनी अथॉरिटी की मोहर लगा सके, स्टैम्प लगा सके. Then he pass that money in the world. In the same way, these women behave in the same way. They want that a new stamp should be put on the friendship of their husbands. बिल्कुल इसी तरह से ये जो वाइज हैं वो पुराने उनके हस्बैंड के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन पर अपनी कंसेंट की जो स्टैम्प है वो लगाना चाहती है. एंड यू मे गेस व्हाट लक जनरली बिफॉल्स सच ए रस्टी पीस ऑफ मेटल एज आई एम इन दीज न्यू मीटिंग्स. एंड लैम सेज कि आप गेस कर सकते हो कि इस तरह की रस्टी पीस ऑफ मेटल का क्या लक रहता होगा, क्योंकि इन दिनों मैं इन नई मीटिंग से गुजर रहा हूँ. He wants to say that during these days he is meeting the wives of his old friends. Now what he feels when he meets these ladies, he says, innumerable are the ways which they take to insult and worm you out of their husband's confidence. There are numerous ways which these ladies use to insult and remove their husband's confidence, laughing at all you say with a kind of wonder, as if you were a queer kind of fellow that said good things but an oddity, is one of the ways. They have a particular kind of stare for the purpose, till at last the husband, who used to defer to your judgment and would pass over some excrescence of understanding and manner for the sake of a general vein of observation that was not quite vulgar, which he perceived in you, begins to suspect whether you are not altogether a humorist, a fellow well enough to have consorted with in his bachelor days, but not quite so proper to be introduced to ladies. तो ये जो लेडीज़ यूज़ करती हैं तरीके, दे आर इननमरेबल, बहुत से तरीके हैं और यहाँ लैम ने एग्जाम्पल्स दिए हैं. उनमें से एक तरीका जो है वो क्या है
दे लाफिंग एट ऑल यू से, आप जो कुछ भी कहते हो उस पर वो एक वॉन्डर के साथ, हैरानी के साथ हंसती हैं, जैसे कि आप एक स्ट्रेंज प्रकार के प्राणी हो जो कि अच्छी चीज़ें भी अजीब तरीके से कहता है. दिस इज़ वन ऑफ द वेज. एंड दे हैव ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेयर फॉर द पर्पस, और इसके पीछे भी उनका एक उद्देश्य होता है. टिल एट लास्ट, वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि उनका हस्बैंड हु यूज टू डेफर टू योर जजमेंट, जो कि आपके जजमेंट की रिस्पेक्ट किया करता था, उससे एग्री हुआ करता था, और आपके बिहेवियर में, अंडरस्टैंडिंग में या आपके मैनर में कोई अगर कमी थी तो उसको वो इग्नोर कर दिया करता था. बट नाउ ही थिंक्स दैट यू आर ए फेलो वेल इनफ टू हैव कंसॉर्टेड विद इन हिज बैचलर डेज. अब वो ये महसूस करने लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके बैचलर डेज के लिए तो ठीक थे, बट नॉट क्वाइट सो प्रॉपर टू बी इंट्रोड्यूस टू लेडीज़, लेकिन लेडीज से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप सही व्यक्ति नहीं हो. दिस मे बी कॉल्ड द स्टेयरिंग वे, और इस तरीके का जो नाम है वो है द स्टेयरिंग वे. एंड इज दैट विच हैज़ ऑफनेस्ट बीन पुट इन प्रैक्टिस अगेंस्ट मी, और ये वो तरीका है जो अक्सर लैम कहता है कि मेरे खिलाफ यूज़ किया गया है. देन देर इज़ एग्जाजरेटिंग वे. फर्स्ट वे दैट लैम tells here is the staring way, and the second one is the exaggerating way or the way of irony. That is, इस तरीके में क्या होता है, where they find you an object of especial regard with their husband, जब उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड आपका विशेष सम्मान करता है, who is not so easily to be shaken from the lasting attachment founded on esteem विच ही हैज़ कंसीव्ड टूवर्ड्स यू, और उन्हें लगता है कि आपका जो अटैचमेंट है उनके हस्बैंड के साथ वो एक रिस्पेक्ट पर आधारित है और उसे वो आसानी से नहीं तोड़ सकती. बाय नेवर क्वालिफाइड एग्जाजरेशन टू क्राई अप ऑल दैट यू से और डू, तो वो क्या करती है, आप जो कुछ भी कहते या करते हो उस पर उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना, एग्जाजरेशन उस पर करना शुरू कर देती है. Till the good man who understand well enough that it is all done in compliment to him, और जो गुड मैन यानी उनका हस्बैंड है वो अच्छे से समझ जाता है कि ये सब उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है, उसे खुश करने के लिए किया जा रहा है. एंड ही ग्रोज weary of the debt of gratitude which is due to so much candor and by relaxing a little on his part, और वो उसका आभार व्यक्त करते करते थक जाता है. एंड टेकिंग डाउन ए पेज और टू इन हिज एंथुजियाज्म, और उसके उत्साह में कमी आ जाती है थोड़ी. सिंक्स एट लेंथ टू दैट काइंडली लेवल ऑफ मॉडरेट एस्टीम, दैट डिसेंट अफेक्शन एंड कॉम्प्लिसेंट काइंडनेस टूवर्ड्स यू, और उसका जो एंथुजियाज्म आपके प्रति पहले था वो कम हो जाता है, वो एक डिसेंट अफेक्शन और कॉम्प्लिसेंट काइंडनेस तक आ जाता है. किस लेवल तक आ जाता है, वेयर शी हरसेल्फ कैन जॉइन इन सिंपैथी विद हिम, जहाँ वो खुद लेडी जो है वो भी अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन कर सकती है आपके प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए, विदाउट मच स्ट्रेच एंड वायलेंस टू हर सिंसियरिटी. नाउ लेम डिस्क्राइब्स नेक्स्ट method, because there are innumerable ways, innumerable methods which these ladies use. He says another way, for the ways they have to accomplish so desirable a purpose are infinite, क्योंकि तरीके जो ये लेडीज़ यूज़ करती हैं वो अनंत है. Another way is with a kind of innocent simplicity continually to mistake what it was which first made their husband fond of you. बार बार वो एक सिंप्लिसिटी के साथ ये बात पूछती हैं कि ऐसी क्या चीज़ उनके कैरेक्टर में दिखी उनके हस्बैंड को, अपने फ्रेंड के कैरेक्टर में, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उस व्यक्ति का इतना ज़्यादा शौकीन हो गया है, उतना ज़्यादा उसे पसंद करता है. इफ़ एन एस्टीम फॉर समथिंग एक्सीलेंट इन योर मोरल कैरेक्टर was that which riveted the chain which she is to break upon any imaginary discovery of a want of poignancy in your conversation, she will cry,
अगर उसे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के साथ किसी मोरल कैरेक्टर यानी आपके नैतिक चरित्र की वजह से वो चेन जो है दोस्ती की वो जुड़ी हुई है, तो वो एक इमेजिनरी डिस्कवरी कर लेती है। क्या कहते हुए कि आप में प्रेगनेंसी की कमी है, मार्मिकता की कमी है, और कोई भी इमेजिनरी डिस्कवरी के साथ वो कहती है दैट शी विल क्राई, आई थॉट, मैंने तो सोचा था, माई डियर हस्बैंड, यू डिस्क्राइब योर फ्रेंड मिस्टर एज अ ग्रेट विट। अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने तो कहा था कि आपका दोस्त जो मिस्टर है वो बहुत बुद्धिमान है। इफ़ ऑन द अदर हैंड इट वॉज फॉर सम सपोज चार्म इन योर कन्वर्सेशन दैट शी फर्स्ट ग्रू टू लाइक यू एंड वॉज कंटेंट फॉर दिस टू ओवरलुक सम ट्रिफलिंग irregularities in your moral deportment, upon the first notice of any of these, she as readily exclaims, "This, my dear, is your good mister." और अगर शुरू में वो आपसे प्रभावित होकर, आपके कन्वर्सेशन से प्रभावित होकर आपके अंदर कुछ कमियों को, आपके मोरल डिपार्टमेंट में अगर कोई इरेगुलरिटीज़ है तो उनको अनदेखा कर देती है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट टाइम वो नोटिस करती है तो वो तुरंत कहती है अपने हस्बैंड से दैट दिस माई डियर इज़ योर गुड मिस्टर। वन गुड लेडी whom I took the liberty of expostulating with her not showing me quite so much respect as I thought, due to her husband's old friend, had the candor to confess to me that she had often heard Mr. Husband speak of me before marriage. अब यहाँ लैम ने अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताया है कि एक बार जब वो अपने फ्रेंड के घर पर गया तो वन गुड लेडी यानी उनके लैम के फ्रेंड की मिसेज जो थी, वाइफ जो थी, whom I took the liberty, जिसके सामने इसने इतनी लिबर्टी ले ली कि उसे कहने लगा कि वो उतना रिस्पेक्ट उसे दिखा नहीं रही है जितना कि उसके हस्बैंड के पुराने मित्र होने के नाते उसे दिखाना चाहिए। एंड हैड द कैंडर टू कन्फेस टू मी, तब उस लेडी ने लैम्प के सामने कन्फेस किया कि उसने अक्सर सुना है अपने हस्बैंड को मैरिज से पहले भी मेरे बारे में बात करते हुए, एंड दैट शी हैड कंसीव्ड ए ग्रेट डिज़ायर टू बी एक्वेंटेड विद मी, और उसमें बहुत इच्छा हुई मुझसे मिलने की, बट दैट द साइट ऑफ मी हैड वेरी मच डिसअपॉइंटेड हर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मेरे साइट ने मुझे मिलने के बाद उसकी सारी उम्मीदें जो थी उनको डिसअपॉइंट होना पड़ा, उसकी सारी उम्मीदें जो हैं वो निराश हो गई। रीज़न क्या था? फॉर फ्रॉम हर हस्बैंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने मेरा जो रिप्रेजेंटेशन उसे दिया था, मेरे बारे में जो उसे बताया था, शी हैड फॉर्म्ड ए नोशन दैट शी वॉज टू सी ए फाइन टॉल ऑफिसर लाइक लुकिंग मैन। उससे उसने ये आइडिया बना लिया था कि वो जिससे मिलने वाली है वो एक बहुत अच्छा टॉल और ऑफिसर के जैसे दिखने वाला व्यक्ति है। आई यूज़ हर वेरी वर्ड्स, यहाँ लैम कहता है आई यूज़ हर वेरी वर्ड्स, कि ये शब्द मैं उसके यूज़ कर रहा हूँ कि उसने ही बोला था ए फाइन टॉल ऑफिसर लाइक लुकिंग मैन, द वेरी रिवर्स ऑफ विच प्रूव टू बी द ट्रूथ, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो सच्चाई सामने आई। दिस वॉज कैंडिड, दिस वॉज फ्रेंकनेस, एंड आई हैड द सिविलिटी नॉट टू आस्क हर इन रिटर्न, और मैंने, लैम कहता है कि मैंने इतनी सभ्यता दिखाई कि मैंने उससे नहीं पूछा दैट हाउ शी केम टू पिच अपॉन ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट फॉर हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स विच डिफर्ड सो मच फ्रॉम हिज ऑन, कि कैसे वो अपने हस्बैंड के दोस्तों के लिए, दोस्तों के पर्सनल स्टैंडर्ड के लिए इस तरह की बात कर सकती है। बिकॉज माई फ्रेंड्स डायमेंशन एज नियर एज पॉसिबल अप्रॉक्सीमेट टू माइंड, क्योंकि मेरे फ्रेंड का जो डायमेंशन है, उसका जो पर्सनालिटी है वो लगभग मेरे जैसी ही है। ही स्टैंडिंग 5 feet 5 इन हिज होज, और वो अपनी फिगर में, अपनी बॉडी में अगर उसकी हाइट देखें तो वो 5 फुट 5 इंच ही है। इन विच आई हैव एडवांटेज ऑफ हिम बाय अबाउट हाफ एन इंच, उसमें मुझे आधे इंच का एडवांटेज ही है, यानी मैं उससे आधा इंच लंबा ही होऊंगा। एंड ही नो मोर देन माई सेल्फ एग्जिबिटिंग एनी इंडिकेशन ऑफ ए मार्शल कैरेक्टर इन हिज एयर और काउंटेनेंस, और उसके हस्बैंड में भी
मुझसे कहीं ज़्यादा ना ही तो कोई मार्शल कैरेक्टर दिखाई देता है उसके हाव भाव में या उसके फेशियल एक्सप्रेशन में। सो हियर लैम कंपेयर्स हिमसेल्फ विद हिज फ्रेंड, कि उस लेडी ने लैम की इंसल्ट की कि वो चाहती थी कि एक ऑफिसर जैसा दिखने वाला व्यक्ति मुझे मिलेगा, लेकिन उसने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचा जो कि इससे कहीं हाइट में भी कम है और उसकी पर्सनालिटी भी इससे अच्छी नहीं है।